सबसे ज्यादा किसने एंजॉय किया? अपना हैंड रेज करो, लेट मी सी हु एंजॉयड द मोस्ट। किसने सबसे ज्यादा एंजॉय किया? ओके, आई कैन सी फ्यू स्टूडेंट, बाकी सबने नहीं किया। ओके, फ्रॉम डैफोडिल बहुत सारे बच्चों ने किया। व्हाट अबाउट लोटस, डिड यू एंजॉय योर वेकेशन? ओके, सनफ्लावर, डिड यू एंजॉय योर वेकेशन? That's nice. That's nice. Okay, okay. So with this vacation hangover, let's move ahead. ठीक है? अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछने वाली। आई एम गोइंग टू आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड आई वांट आंसर फ्रॉम यू। कैन यू सी दिस ग्लास? कैन यू सी दिस ग्लास? Is this empty? Is this empty? Okay, how many of you agree that it is empty? Show me your hand raise. Raise your hand if you believe or you think that it's empty. Raise your hand. So sunflower, everyone from Lotus, few students, or I can say more than few. I can say only 5-6 students are not raising their hands. What about daffodil? Yes, daffodil. Is this empty? Daffodil? Daffodil is very firmly saying that it's not empty. What it is having then? What it is having? Yes? Oh, wow, that's air. Can you prove me that it is having air? Yes? Can you prove that it is having air? देखो मैं तो इसको ऊपर नीचे ऐसे कर रही हूँ. Nothing is coming out. Can you prove this? Acha, we cannot see air, huh? That's your proof. So, but here in science class we need proof. So let me show you here. So to confirm it is having air, that you already learned in your class 6, even in the 5th standard also. चलो ध्यान से देखो everyone, pay attention. Sunflower, middle row, third bench girl, green t-shirt. बेटा मैंने कहा मेरी screen big है. I have big screen. I can see each and every student movement. So be alert. ठीक है? So ध्यान से देखो everyone. ये देखो. To confirm it is having air or not. Let's check it out. क्या इसमें air थी? Can you see something is coming out of this? Okay, let me zoom it so that you can see it. Did you see something? Did you see something, beta? Is there any bubble in this? Okay, let me show you again. Can you see any bubble? Yes or no? Okay, आपको भी नहीं दिख रहा. Okay, so let me zoom it. फिर से मैं इसको zoom करके यहीं को दिखाती हूँ, so you can see the bubble. Can you see now? It's a big bubble. दिखा आपको? Yes. अब ये bubble कहाँ से आया? मैंने तो कुछ इसमें soap नहीं डाला. I haven't added any soap solution or anything that can make bubble. Yes. So from where this bubble come? कहाँ से आता है ये bubble? Yes. Who can tell me? Bubble कहाँ से आया? Yes, who can tell me? From daffodil, because daffodil said that it is having air and they can prove it, and I prove it here. अब मुझे बताओ ये एयर में ये जो बबल है वाटर में कहाँ से आया? Yes, daffodil से रोल नंबर 5 आ जाओ. रोल नंबर 5 from the daffodil. Who is roll number 5? Who is roll number 5 in daffodil? रोल नंबर बोला जाए. कम फास्ट, डोंट वेस्ट टाइम. यस, बस यहीं खड़े हो जाओ. स्टैंड हियर. अभी आपने देखा. यस बेटा, थोड़ा सा कैमरे के फोकस में आओ. यू कैन सी योर सेल्फ दैट यू आर अंडर. यस. अब मुझे बताओ ये बबल कहाँ से आया था? फ्रॉम वेयर?
जो अभी हमने ग्लास को इन्वर्ट किया और जो पानी में बबल आया वो कहाँ से आया? From air. So we can we say that this glass is having, or air is present in this glass? Yes. So air is present everywhere. Now sit down, beta. Sit down. That's good. Now next question, everyone. Pay attention. Can you say, or can you agree with me that if I say air is a matter, am I right? Am I right? Air is a matter? Say yes or no. Air is a matter. Acha, how many of you agree that air is a matter? How many of you agree that air is a matter? Okay, student from the Lotus. What about sunflower? How many of you agree that air is a matter? Sunflower. Sunflower say, how many of you agree that air is a matter? Raise your hand. Okay, only two students I can see. Daffodil say, how many of you agree that air is a matter? Okay, that's nice. That's nice. So, yes, daffodil mein again, everyone is saying air is a matter, and you are correct. Air is a matter. अब मुझे कौन बताएगा what is matter? What is matter? Who can tell me the definition of matter? सभी नहीं बोलेंगे, not now everyone. सारे ये song थोड़े ना कि हाँ भी you are about to sing that song कि matter is this, matter is. Only one student come up, ठीक है? सिर्फ एक बच्चा आएगा. Yes, only one student. Yes, from sunflower. Now I need student from the sunflower who will come and tell me the definition of matter. It's not new for you. It's not new for you. Yes, who will come from? Yes, last bench girl. Yes, Ajo beta. You raise your hand. Yes. I like students who come forward itself. That's really nice. You're a brave student. Yes. Anything occupies mass is called matter. Anything occupies space and have mass. Hana? So that is matter. That's nice. Well done. And air has mass? Yes. And it occupies space also? Yes. Okay, that's nice. Well done. Well done. That's nice. Good, beta. Sit down. Sit down. Yes. So yes, air is a matter and it occupies space and has mass. That's correct. ठीक है? And if we talk about, to confirm it, let me show you here in this. So this balloon is having what? क्या है इसके अंदर? बलून के अंदर क्या है? What it is having? Air. और इसका मतलब इसने जगह घेरी है. जगह घेरने को क्या कहते हैं? कैपेसिटी, और वी कैन से वॉल्यूम. सो इट हैज वॉल्यूम, इट हैज, वी कैन से ऑक्यूपाई स्पेस. और अगर हम इसका वजन देखें, अगर हम इसको कंपेयर करें जब इसको फुलाया नहीं था और अब, सो देयर इज अ डिफरेंस. सो इट मींस इट हैज मास आल्सो. ठीक है, इसका वजन भी है. ठीक है, सो यस, एयर हैज क्या है? mass, and it occupies space also. ठीक है, so that's correct. So now we know about the matter. अब मुझे कौन बता सकता है मैटर कितनी तरह के होते हैं? How many types of matter we have? I'll give you hint here. There are three. There are three. Who can tell me the name of those? Yes, from the Lotus. Yes, last bench. Blue t-shirt girl. आ जाओ बेटा. Yes. Solid, liquid, and gas. Solid, liquid, and gas. That's really nice. अब एक और क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं, can you answer me? Okay. Out of these three, which has, ठीक है, ध्यान से सुनना, इन तीनों में से किस में इंटरपार्टिकल स्पेस ज्यादा होते हैं? Which is having higher interparticle space? Yes, that's nice. That's nice. Sit down, beta. Well done. So इंटरपार्टिकल स्पेस क्या हो गया? उनके बीच जो है, जो पार्टिकल्स है उनके बीच में किसमें सबसे ज्यादा जो है दूरी होगी, स्पेस होगा? So that is, or we can say that should be gas only. ठीक है, so that is what.
अब यहाँ पर आ जाता है कि इस स्पेस से हमें क्या पता लगता है. Okay, right now I can see like in the sunflower, in the middle row, 3 students are sitting per desk. But in lotus, or if I compare it with the daffodil also, 2 students are sitting per desk. अब यही चीज पे हम कंपेयर कर सकते हैं. We can compare here only. In sunflower, middle row, 3 बच्चे एक डेस्क में बैठे हैं. अब इन तीनों ने अगर मूवमेंट करनी होगी, हिलना होगा, इनके लिए हार्ड होगा, इजी होगा? Yes, hard होगा, है ना? It is difficult for them to move. But if I say lotus and daffodil, middle row, only 2 students are sitting per desk. So it is easy for them to move or hard? वो देखो डैफोडिल के सेकंड बेंच के बच्चे जो है पूरा हिल के दिखा रहे हैं. यस, इट्स वेरी इजी. हाँ, येलो टी शर्ट एंड ग्रीन टी शर्ट बॉय. सो यस, इट इज इजी फॉर यू टू मूव. अगर मैं अभी सनफ्लावर से थर्ड बेंच अगर बच्चे को कहती है जो मिडल में बैठा है येलो टी शर्ट बॉय कि बाहर आओ, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को साइड करना पड़ेगा, किसी एक साइड से निकलना पड़ेगा. सो इट इज हार्ड फॉर देम. ठीक है. सो यही चीज होती है सॉलिड में कि वो साथ में होते हैं, उनको थोड़ा मुश्किल होता है अपने बीच में किसी को फिक्स करना या इधर उधर जाना. बट व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विड, उनका थोड़ा इजी होता है. लाइक वी कैन से डैफोडिल और लोटस, मिडल रो स्टूडेंट्स आर सिटिंग. यहाँ पर थोड़ा स्पेस है, हम एक और बच्चे को फिट कर सकते हैं, तो उनका वॉल्यूम कुछ इंक्रीज नहीं होगा, वही डेस्क रहेगा. बट अगर हम अब लोटस और डैफोडिल में से मिडल रो से एक एक बच्चा और हटा दे, ओनली 1 स्टूडेंट इज सिटिंग, तो क्या हो जाएगा? जैसे कि डैफोडिल में फर्स्ट बेंच में बच्चा बैठा है, ब्लू टी शर्ट बॉय इन द मिडल रो, वो अकेला बैठा है, तो उसके लिए तो और ज्यादा मूवमेंट इजी है. वो ऐसे बैठ सकता है, ऐसे बैठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, पूरा डेस्क इज हिज ओनली. सो दैट इज गैस नेचर. So this is how gas, liquid and solid behave. ठीक है, ऐसे ही चलता है. अब ये इसको थोड़ा सा हम समझते हैं. ठीक है, let's understand this. और ये भी मैंने आपको करा के भी दिखाया, तो I'll show you. यहाँ पर भी देखो, teacher is having empty glass, asking the same question, is it empty or filled? अब आप मुझे फटाफट बताओ, अभी हमने क्या, is it empty or filled? Filled with air. So again, she is telling by inverting the glass. So here you can see bubbles are here. So it is confirming that glass is having air. That's nice. ठीक है. अब next आ जाता है matter, जो मैंने आपसे पूछा था. So matter क्या होता है? That occupies space and has mass. तो हम सभी यहाँ पर, मैं होगी, आप होगे, आपके फैन हो गया, वॉल हो गया, एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर. सब चीज मैटर है. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एवरीथिंग इज मैटर. जो भी चीज है वो मैटर है. ठीक है. अब आ जाते हैं, ये जो चीज अभी मैंने आपको डेस्क वाला एग्जाम्पल लिया, ठीक है, जो एग्जाम्पल अभी मैंने लिया वही मैं करती हूँ. ठीक है. सो यहाँ पर okay, we have time, so I can tell you, okay, I need, okay, लोटस से I need some students. ठीक है. येलो टी शर्ट वाले 3 बच्चे आ जाओ मिडल रो में, फर्स्ट बेंच के आगे खड़े हो जाओ फटाफट. फर्स्ट बेंच वाली गर्ल आ जाओ, पीछे भी येलो टी शर्ट है, थर्ड वाला भी है, तीनों आ जाओ. कम फॉरवर्ड फास्ट, ओनली येलो टी शर्ट. दिस इज फर्स्ट बेंच ऑल्सो. आ जाओ बेटा. अब तीनों जैसे ये बच्चे खड़े हो वैसे खड़े हो जाओ, वैसे ही खड़े हो जाओ जैसे ये तीनों बच्चे सामने, बेटा मेरे सामने, कैमरे के फोकस में, सो दैट आई कैन सी यू और अदर कैन ऑल्सो सी यू. यस, थोड़ा सा और. यस, थोड़ा सा और इधर हो जाओ. यस, तीनों ऐसे सीधे खड़े हो जाओ. स्टैंड, स्पेस नहीं होना चाहिए. यस, थोड़ा सा गर्ल, थोड़ा सा इधर बेटा. यस यस. अब आप तीनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है. अगर मैं किसी और स्टूडेंट को कहूं कि आप तीनों में से किसी के बीच में आ जाओ, डू यू थिंक दे कैन कम? नहीं, है ना? नहीं. सो दिस इज सॉलिड. अब आप तीनों थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ, थोड़ा थोड़ा. यस, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और. बीच वाला वही रहेगा, साइड वाले थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ, थोड़ा सा और हो जाओ. बस बस, दैट्स फाइन. अब रेड टी शर्ट वाले 2 बच्चे आ जाओ. रेड टी शर्ट, एक तो फर्स्ट बेंच, मिडल रो, फर्स्ट बेंच. यस. और एक
एक जो है दूसरी रो से सेकंड लास्ट में जो रेड टी शर्ट गर्ल है, आ जाओ आ जाओ फटाफट, कम फास्ट, यस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप दूसरी साइड जो उन दोनों बच्चों के बीच स्पेस है वहां चले जाओ बेटा, दोनों के बीच जो स्पेस है बस, यहाँ पर हिलना किसी ने नहीं है, कोई मूव नहीं करेगा। अब क्या मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये जो 3 येलो टी शर्ट वाले बच्चे थे उनके बीच में थोड़ा स्पेस कर दिया। अब उसमें कोई और आके फिट हो सकता है क्योंकि दे हैव स्पेस, उनके बीच में स्पेस था। तो ये किसका नेचर है? इट इज नेचर ऑफ लिक्विड। तो अगर हम यहाँ पर कहते हैं सॉलिड, जो पहला केस था, तो वो मूव नहीं कर सकते थे, हमने और बच्चे अगर हम डालते उसमें तो वो इधर उधर होते, ठीक है। अब अगर हम लिक्विड की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट लिक्विड। जैसे मैंने अभी आपको ऐसे खड़ा किया येलो टी शर्ट्स को, बीच में स्पेस था, रेड टी शर्ट बच्चे आए उस स्पेस में आके फिट हो गए, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी रेड टी शर्ट रेड यूनिफॉर्म वाले फिट हो गए। सो इट मींस लिक्विड के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, कोई और आके उसमें फिट हो सकता है विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम। आप तीनों जहां पर खड़े थे येलो टी शर्ट वाले, वो वहीं के वहीं खड़े हो। सो दैट हैपेंस इन द केस ऑफ लिक्विड। अंडरस्टूड? समझ में आया? हाँ, अच्छी तरह समझ आया, दैट्स गुड। क्लैप फॉर दीज 5 स्टूडेंट्स, अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया, यस दैट्स नाइस। सिट डाउन बेटा, सिट डाउन, सिट डाउन, ठीक है। So that happens in the case of liquid. अब let's talk about gas. अब मैं गैस के लिए इसलिए खड़ा नहीं करना चाहती क्योंकि उसमें भागना पड़ेगा, सो उससे डिसिप्लिन हमारा खराब होगा। So let's talk about गैस। गैस में क्या होता है? गैस में वो फ्रीली घूम रहे होते हैं, इधर उधर रोम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी आके ऐड हो सकता है, लेट्स से हियर, यहाँ पर देखो कहीं से भी ऐड हो रहा है, सो इट डजंट मैटर टू देम। तो मतलब गैस तो पूरा फ्री है, इट कैन गो एनीवेयर, उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, ठीक है। सो दैट हैपेंस इन द केस ऑफ गैस, मींस देयर इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन इज वेरी लेस, ठीक है। सो दैट हैपेंस इन गैसेस। अब ये जो स्पेस की बात कर रहे हैं, इससे हमने करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई चीज, ठीक है, इसको समझो, अगर कोई लेट्स से सॉलिड, ठीक है, मेरे पास कोई सॉलिड ले लेती हूँ, लेट्स टेक दिस बॉक्स, आई हैव सॉलिड है, प्लास्टिक का है। अब ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स जैसे भी हमने देखे एकदम टाइटली प्लेस्ड हैं, ठीक है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या है? वेरी हाई, उनके बीच में खुद की अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है, कोई और बीच बाहर से आ नहीं सकता। सो इट इज टाइटली बाउंड। क्या मैं इसको दबा सकती हूँ? कैन आई कंप्रेस इट? नो, है ना, कंप्रेस नहीं हो सकता। इसको मैं दबाना चाहूं तब भी मुझसे प्रेस नहीं हो रहा, आई एम नॉट एबल टू प्रेस इट। तो इसी से हम एक वर्ड सीखते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। क्या हम इसको प्रेस कर सकते हैं? क्या ये दब सकता है? नो, सो ये कंप्रेसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम एक बात करें, अगर हमारे पास लिक्विड है, पानी को हाथ में ऐसे ले ऐसे करें, तो कैन वी कंप्रेस इट? वाटर कैन कंप्रेस, थोड़ा सा तो कंप्रेस होगा, बाहर को निकलता है, यस और नो? बाहर को निकलेगा ना, तो थोड़ा सा कंप्रेस है। लेकिन अगर मेरे पास ये जो बलून था पहले, अगर इसको मैं कंप्रेस करूं, ये देखो इट इज कंप्रेसिंग, ये देखो इसको मैं अच्छे से कंप्रेस कर रही हूँ, देखो ये देखो, कैन यू, ये देखो यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छी तरह से दिख रहा होगा। सो यू कैन सी आई कैन कंप्रेस इट। ये क्यों कंप्रेस हो रहा है, ज्यादा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एयर। सो एयर इज हाईली कंप्रेसिबल, इसको हम ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज कंप्रेसिबिलिटी। अब इसको चेक करें, वांट टू चेक इट एक्सपेरिमेंट के थ्रू। किस किस को ये कभी इंजेक्शन लगे? आई नो इतने बड़े तो नहीं लगे होंगे, सबको लगे होंगे ना वैक्सीनेशन, हाँ सबकी वैक्सीनेशन हुई होगी सबको। किस किस को डर लगता है वैक्सीनेशन से? और यू आर ब्रेव इनफ, हाँ, किस किस को डर लगता है वैक्सीनेशन से? जरा हैंड रेज करो, आई वांट टू सी। ओके, few students are raising their hand. Okay, okay, so it's fine if you are afraid of this, it's also fine, but यहाँ पर I don't have needle, so don't worry about it, ठीक है। It's just syringe and this is empty. Empty means it is having what? If I say it is empty, it is having what? Air.
नाउ इन दिस आई फिल्ड वाटर एंड इन दिस सैंड, ठीक है, ये किया है। अब मैं आपको वन बाय वन करके, देखो तीनों की पिस्टन की जो पोजीशन है इट्स सेम, तीनों की सेम पोजीशन है, ठीक है। अब मैं वन बाय वन करके दिखाऊंगी आपको। इसमें सैंड भरी है मतलब सॉलिड, इसको आगे से मैं कवर कर रही हूँ, ठीक है, तभी वो एक्सपेरिमेंट हो पाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एयर का इस पे कोई इंफ्लुएंस हो। नाउ आई पुल, ये देखो मैं इसको पुश कर रही हूँ with full energy और full power, but I'm not able to move it, जरा भी मूव नहीं हो रहा, it's not moving, ठीक है। लेट्स गो टू द वाटर, जिसमें वाटर है, ठीक है, लेट्स से थोड़ा सा होता है या नहीं। सो इट्स मूविंग बेट, थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा सा, ये देखो थोड़ा सा हुआ है, ओनली बेट, ज्यादा नहीं हुआ। इसमें ये फोर्स लगा रही हूँ थोड़ा सा, आई थिंक यहां से यहां तक नेक्स्ट लेवल पे गया है। इट इज हैविंग एयर नाउ, जो कि हम एम्प्टी कहते हैं। इसमें भी मुझे फोर्स लगानी पड़ रही है, बट कैन यू सी द पिस्टन इज गोइंग अपवर्ड, थोड़ी सी जा रही है, कैन यू सी दिस। अब इसके बाद नहीं जा रही, इट्स नॉट मूविंग, इसके बाद नहीं, इट स्टॉप्ड हियर। अब लेट्स कंपेयर द पोजीशन ऑफ दीज थ्री, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं हम तीनों को, कि इनकी पोजीशन कितनी चेंज हुई है, और इससे हमें पता चलेगा लाइक सैंड इज हेयर, वाटर इज हेयर, ठीक है। कैन यू सी द पोजीशन डिफरेंस, दिख रहा है आपको, डिफरेंस दिख रहा है, कैन यू सी द डिफरेंस। ये नीचे है, इसका मतलब ये जरा भी नहीं प्रेस हुआ, दैट इज सॉलिड। थोड़ा सा प्रेस हुआ, दैट इज लिक्विड। लेट्स मूव टू द गैस। नाउ कैन यू सी द डिफरेंस इन द पोजीशन। So which is highly compressible? This is air. Highly compressible among these three. ठीक है, तो इसका पिस्टन की पोजीशन यू कैन सी, अगेन आई एम गोइंग टू कंपेयर इट, सो यू कैन सी इसका देखो सबसे ऊपर है, देन लिक्विड, देन वी हैव दिस सॉलिड। तो यहां से भी हमें यह पता लगता है विच इज हाईली कंप्रेसिबल। इज इट क्लियर? यस, क्लियर बेटा। सो नाउ अब इंटर पार्टिकल की जब हम बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटर पार्टिकल, सो लेट मी शो यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हियर। वैसे तो हमने थोड़ा सा जान ही लिया है, बट स्टिल आई वांट टू शो यू वन मोर टाइम हियर। सो इन दिस थ्री बीकर्स, ठीक है, तीन बीकर्स है आई हैव। अब मैं इनमें एक में मैं पानी डालूंगी, आई एम गोइंग टू एड सम वाटर। सिर्फ एक में पानी डलेगा। इन वन आई एम गोइंग टू एड सैंड, ठीक है, जो सिरिंज से है वही सैंड में ले रही हूँ, आई एम टेकिंग दैट सैंड ओनली, ठीक है। So it is having sand, this is having water, and it is having what? It's empty. What is it is having? Yeah. Wow, brilliant student, हाँ। अब मैं पहले सॉलिड में डालती हूँ। Is there any change in the volume or particles are moving anywhere? Is there any movement? कोई movement दिख रही है? No. So अब इन्हीं particles को water में डालते हैं। Is there any movement? Is there any movement? Can you see the movement? They are moving? Yes. अब इसको मैं ऐसे ही डाल रही हूं। अब आप बोलोगे इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, यू आर सेइंग इट्स गैस, बट फॉर द गैस आई नीड एयर, और फॉर दैट एयर आई नीड दिस बलून। इस बलून को मैं थोड़ा सा तोड़ दूंगी, ठीक है, और इसको तोड़ के तो कुछ नहीं मिला, मुझे एक और लेना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो आई एम गोइंग टू इन्फ्लेट दिस बलून एंड आई शो यू हाउ पार्टिकल्स ऑफ एयर मूव, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, लेट मी जूम इट ऑल्सो सो यू कैन सी हाउ पार्टिकल्स ऑफ एयर और वी कैन से गैस विल मूव। अभी एक हमारे पास गैस के हमने पार्टिकल्स है, और इसमें जब गैस जाएगी तो क्या, यू सी दिस इज हाउ पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव। ऐसे मूव करते हैं इधर उधर रैंडमली, रैपिडली, विद हाई एनर्जी। कौन सी एनर्जी है इनके अंदर? कैन यू टेल द नेम ऑफ दैट एनर्जी? आई कैन हियर इट, समवन इज सेइंग यस। बेटा कौन सी एनर्जी होती है पार्टिकल जब मूव करता है?
व्हेन समवन इज मूविंग, जो हम कब मूव करते हैं तो हमारे अंदर कौन सी एनर्जी आती है? इट इज काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ड्यू टू मोशन और मूवमेंट। लिखो इसे, ये आगे भी पढ़ोगे, लिखो काइनेटिक एनर्जी। ये आपने सुना भी होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट समवेयर। लिखो काइनेटिक एनर्जी। सो व्हेन वी टॉक, लेट्स कंपेयर इट, ठीक है। इफ वी से गैस, इफ वी से गैस, इसमें क्या है? इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा है? और वी कैन से हाई, हाई इंटर पार्टिकल स्पेस। स्पेस ज्यादा है तो क्या होगा? मूवमेंट इनके बीच में कैसी होगी? मूवमेंट विल बी मोर, ज्यादा ये मूव कर सकते हैं, अभी मैंने आपको करके दिखाया। मूवमेंट अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब दे विल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इसी का उल्टा हो जाता है सॉलिड। सॉलिड इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ गैस। तो इफ वी टॉक अबाउट सॉलिड, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा? नो, कोई स्पेस नहीं है इनके बीच में। इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है इन सॉलिड? इट्स नो। मूवमेंट ऑफ क्या हो जाएगा? मूवमेंट नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशन होती है। दे ओनली वाइब्रेट। इन क्लास 7th यू लर्न, कंडक्शन में पढ़ा है, हीट में, कि सॉलिड ओनली वाइब्रेट, अपनी ही पोजीशन में वाइब्रेट करते। दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। मूवमेंट क्या है? नो, ओनली वाइब्रेशन, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो मूव ही नहीं कर रहे? वेरी लो, वेरी वेरी लो। इसको के ई लिख रही हूं, इसको के ई भी लिख सकते हैं। और इन दोनों का अगर हम बीच में कर दे, दैट इज लिक्विड, ठीक है, दैट इज लिक्विड, ठीक है। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। We are going ahead with the next experiment. In this, नोट करो बेटा, जल्दी करो, डू इट फास्ट, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, जो अभी हमने किया था लिक्विड वाला, जिसमें बच्चों को मैंने बीच में फिक्स किया था, उनका जो है स्पेस जरा भी हिला नहीं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू चेक इट विद द साइंटिफिक प्रूफ ऑल्सो, ठीक है। सो नाउ हियर यू कैन सी, इसमें देखो मैंने पानी डाला है, इट इज 50 ml, 50 ml मैंने वाटर डाला है। इन दिस वाटर आई एम एडिंग सॉल्ट, अब मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, बट आई एम नॉट मिक्सिंग इट फर्स्टली, मैं इसको पहले मिक्स नहीं कर रही। एंड विदाउट मिक्सिंग, इट्स वॉल्यूम इज 60 के अराउंड है, इट्स बिटवीन वी कैन से 55 to 60, तो इसका वॉल्यूम रेज हो गया है पानी का। बट इफ आई स्टर इट, डिसॉल्व करती हूँ, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? तो लेट इट चेक, चेक करते हैं कि कोई वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा। So now it's dissolved and again volume is 50. Can any one of you tell me, पहले वो रेज हुई फिर वापस इनिशियल पे गई, why so? कोई बता सकता है? Can any one of you tell me कि पहले नमक डालने पे पानी का जो वॉल्यूम था, जो उसका जो नंबर था वो इंक्रीज हुआ, और आफ्टर स्टरिंग डिसॉल्व करने के बाद वापस चला गया, ऐसा क्यों? थिंक अबाउट दिस। पहले क्या हुआ? डिसॉल्व नहीं किया था, सॉलिड वाज नॉट डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, तो उसने अपना स्पेस लिया, तो पानी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब हमने जो बच्चों के साथ किया था, येलो टी शर्ट्स बच्चे जो थे, उनके बीच में जब स्पेस था, रेड टी शर्ट वाले बच्चे फिक्स हुए, तो वो उनकी जगह नहीं चेंज हुई, ठीक है, वो वहीं के वहीं रहते। सेम यहाँ पर पानी के बीच जो स्पेस था, ऑन इन दैट स्पेस, ठीक है, solid get trapped or we can say get fixed, and because of that we can say that volume come to the original position, उसी की वजह से आती है, ठीक है। Is it clear? क्लियर है?
Yes, is it clear? Yes or no? Yes. ठीक है. So that is what. Now next thing that I want to tell you. अब आपके घर में, बेटा ध्यान से सुनो, आपके घर में धूप जलता है, अगरबत्ती जलती है, धूप या अगरबत्ती जलती है, किस किस के घर में जलती है? रेज योर हैंड. Okay, almost everyone. Daffodil, middle row, first bench, boys. Yes, what's your status? Yes. दोनों के घर नहीं जलता कुछ भी? खाना बनता है? खाना बनता है? तो बनता होगा. क्या जब खाना बनता है और आप दूसरे रूम में होते हैं आपको खुशबू आती है? कैन यू स्मेल इट? आती है? कभी सोचा है कैसे आ रही है? अभी मत बोलना यू हैव नो सो यू कैन स्मेल इट. हाँ, दैट इज वेरी बेसिक आंसर आई कैन गेट. सो आंसर इज नॉट दिस, आंसर इज समवेयर इन द साइंस. ठीक है, सब ध्यान से सुनो और देखो इसे. ओके, आई एम गोइंग टू शो यू दैट. सो हियर आई एम गोइंग टू शो यू दैट जो चीजें आपको स्मेल आती है, ठीक है, दैट यू कैन स्मेल इट. परफ्यूम लगाया हो, कुछ भी किया हो तो यू कैन स्मेल इट, इवन इट इज वेरी फार. ठीक है, अब ये देखो मेरे पास क्या है? धूप. इंसेंस स्टिक तो नहीं कह सकते. ठीक है, सो वी हैव धूप हियर. आई एम गोइंग टू बर्न इट. अब इसका धुआं होता है, क्या वो उसी जगह रहता है? इट इज गोइंग टू स्प्रेड. सो लेट अस चेक इट. ठीक है, क्या ये एक्चुअली में स्प्रेड होता है? क्या एक्चुअली में इधर उधर जाता है? सो वी आर गोइंग टू चेक दिस नाउ. बेटा इसको ध्यान से देख लो. ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स इन योर टेक्स्ट बुक, और उसी के बेस में आपका पूरा चैप्टर है. एंड दिस चैप्टर इज गोइंग टू लिंक विद क्लास 9th ऑल्सो. अगर यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट वीक रह गया, इट विल बी हार्ड फॉर यू टू क्लियर 9th. ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर 8th स्टैंडर्ड. अब ये देखो धुआं निकल रहा है, आप सबको दिख रहा है. सो लेट्स चेक इट और कंफर्म करते हैं कि एक्चुअली में धुआं ऊपर जाता है. अब आपको ये फ्लास्क जो है कैसा दिखेगा? आई विल शो यू. जूम करके एक बार आपको दिखाती हूँ सो यू कैन सी. इज इट नाउ ब्लड? बेटा दिख रहा है आपको? ये ब्लड दिख रहा है, धुआं यहाँ पर, ये फ्लास्क. अब मैं आपको इसमें से मैजिक करके दिखाती हूँ. आई एम गोइंग टू शो यू मैजिक. हमारे फ्लास्क में कुछ नहीं था. व्हेन आई पुट इट लाइक दिस, when I remove it, so you are going to see something is coming out of this. So let's see. Can you see this? What is coming? इसके मुंह से क्या आ रहा है? स्मोक. जबकि हमने तो इसमें नहीं डाला था. इट मीन्स जो यहाँ पर ये इंसेंस स्टिक बर्न हो रहा है, इससे जो स्मोक आ रहा है, इट इज मूविंग हियर एंड देयर. तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस फिनोमिना? किसी को पता है? Yes, can any one of you tell me what it is called? It is called diffusion. इसको लिखो, इसको कहते हैं diffusion. Diffusion यानी spread होना. कोई चीज spread हो रही है. मगर अभी आपको मैं spread बता रही हूँ, but in higher classes you are going to learn diffusion is not about only spreading. क्योंकि इसको टर्म को लिखो diffusion. इसको ब्रैकेट में लिख दो spreading everywhere या spreading in all direction. Spreading in all directions. In higher classes you are going to learn, in bio especially, in chemistry also you are going to learn diffusion is related with the amount. जहां पर चीज ज्यादा होगी उससे वो कम वाली जगह पे जाएगा, कोई भी चीज. ठीक है, इट्स रिलेटेड विद द कॉन्सेंट्रेशन. बट अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही समझना है, कोई चीज जब वो फैलती है, ये देखो अभी भी यहाँ पर से धुआं निकल रहा है, यू कैन सी. सो दैट इज डिफ्यूजन. ठीक है, अब ये डिफ्यूजन सिर्फ गैस में नहीं होती कि ये गैस है तो ये हो रहा है. इट कैन हैपन और इट कैन बी इन लिक्विड्स ऑल्सो. सो लेट अस चेक इट आउट. सो अगेन आई विल गोइंग टू शो यू हियर इन दिस. So in this is plain water. ठीक है, plain water है. And in this I am going to add, अब इसमें मैं क्या ऐड करने वाली हूँ? पोटेशियम परमैंगनेट. This is potassium permanganate.
जब ये इसमें जाएगा तो यू कैन सी द चेंज इन द कलर, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू ऐड, इसको ध्यान से देखो एवरीवन, इसको मैं थोड़ा एक बार जूम कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी कि डिफ्यूजन कैन हैपन इन लिक्विड्स ऑल्सो, ठीक है। सो आई एम जूमिंग इट हियर। सब इसको ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ओनली यू गेट द पिक्चर, टेक्स्ट बुक में सिर्फ पिक्चर मिलेगी, यहाँ पर आपको लाइव मिल रहा है। सो देखो, कैन यू सी, देखो डिफ्यूजन, आई एम एडिंग द ड्रॉप्स वन बाय वन, इट इज गोइंग लाइक दिस। देखा आपने, ये देखो कैसे स्प्रेड हो रहा है, इट इज स्प्रेडिंग लाइक दिस। ये देखो, मैं इसको व्हाइट के अगेंस्ट लगा के दिखाती हूँ, ये देखो स्प्रेड हो रहा है। कैन यू सी, अभी बीच में स्टिल ये ट्रांसपेरेंट है, इट्स स्टिल ट्रांसपेरेंट इन बिटवीन। यहाँ पर देखो डार्क है, ऊपर डार्क है, स्प्रेडिंग, ये स्प्रेड हो रहा है। अभी मैं और डाल के दिखाती हूँ, सी कैसे जा रहा है, हाउ इट इज गोइंग। तो दिस इज डिफ्यूजन, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। सो इट कैन हैपन इन लिक्विड्स ऑल्सो and in solid it can happen but it takes lot of time, it's very slow, क्योंकि वहां पर particles tightly bound है, again kinetic energy low है, so there are many factors for this. I hope it is clear to everyone. Yes, diffusion is clear ना बेटा, क्योंकि आगे भी आपके काम आएगी, ठीक है। so that's why अब हमारे पास let's say किस किस को आइसक्रीम पसंद है, how many of you like to have ice cream, किस किस को आइसक्रीम पसंद है, सबको नहीं पसंद है। आई एम सरप्राइज्ड को हो या शॉक हो, मैम इज शॉक टू नो दैट कुछ ही बच्चों को पसंद है। नाउ आई कैन सी मैनी हैंड्स आर कमिंग फॉरवर्ड, ठीक है, दैट्स नाइस। अब किस किस की आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है, कौन स्लो ईटर है, हु इज स्लो ईटर, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, ली, और जब तक खा रहे हैं वो मेल्ट हो गई, गिर गई। किस किस के साथ ऐसा होता है, यस यस, किसी के साथ नहीं होता। ओके, आई कैन सी नाउ 1-2 स्टूडेंट रेज देयर हैंड, डोंट वरी, आई एम गोइंग नॉट गोइंग टू नेम इट, आई हैव सीन, इट्स ओके, ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि ये होता है बच्चों के साथ, इट्स परफेक्टली फाइन, मैम के साथ भी होता है, मैम इज ऑल्सो नॉट वेरी फास्ट ईटर, ठीक है, आई ऑल्सो टेक टाइम एंड इट्स परफेक्टली फाइन। हाँ, सो अब बताओ, जो सॉलिड आइसक्रीम थी वो मेल्ट कैसे होगी, हाउ इट गेट मेल्ट, क्यों होगी मेल्ट, व्हाई इट गेट मेल्ट। अब इसका रीजन क्या है, देखो मेल्ट वर्ड जब यूज करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेल्ट, मेल्ट मतलब, मेल्ट क्या होता है, सॉलिड ही मेल्ट होता है, ओनली सॉलिड गेट मेल्ट, सॉलिड गेट मेल्ट इनटू लिक्विड मींस इट्स स्टेट इज चेंजिंग, ठीक है। ये कब हो रहा है, व्हेन इट हैपनिंग, व्हेन इट इज हैपनिंग व्हेन टेम्परेचर इज नॉट सेम। फ्रिज के अंदर टेम्परेचर क्या था, बहुत ठंडा, लो टेम्परेचर, बाहर जब आए टेम्परेचर क्या था, हाई था, सो देयर इज अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर, ठीक है। लो टू हाई टेम्परेचर गया जिसकी वजह से मेल्ट हुआ, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग, जो आपने जो है वाटर साइकिल या अपने जो है पिछले चैप्टर्स में पढ़ी हुई है, जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लास 6 में, ठीक है। अब सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है, प्रोसेस का नाम हमें पता लग गया, मेल्टिंग, लेकिन वो कौन सा टेम्परेचर है, एट विच टेम्परेचर दिस एक्चुअली हैपन्स, कब वो टेम्परेचर होता है जिसमें सॉलिड लिक्विड में जाता है, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में होता क्या है, इसको लिखो एवरीवन, नोट डाउन, लिखो इसे, क्योंकि मैं वो चीज नहीं बता रही दैट इज इन योर टेक्स्ट बुक, आई एम टेलिंग यू बियॉन्ड योर टेक्स्ट बुक, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन क्लास 9th ऑल्सो, 10th ऑल्सो एंड हायर क्लासेस। इसको लिखो, इन सॉलिड में क्या होता है जब उसे हम बाहर लेके आए हैं, सॉलिड में क्या हो रहा है, क्या होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो इंक्रीज होने लगेगा, इंटर पार्टिकल स्पेस दिस इज गेटिंग इंक्रीज्ड, इंक्रीज हो रहा है उसका इंटर पार्टिकल स्पेस, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, गेटिंग इंक्रीज्ड। अब उसके इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाई, ये भी हाई हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, मूवमेंट क्या हो जाएगी, इट विल बी हाई, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स
हाई। और ये सब जब हो जाएगा, जब ये सब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये चेंज आएगा। कब आएगा? मेल्टिंग पॉइंट पे, उस टेम्परेचर पे। इसको लिखो, इसको नोट डाउन करो, नोट इट डाउन। और हर एक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता। आपकी आइसक्रीम जल्दी पिघल जाएगी, लेकिन अगर आप चीनी को रखोगे बाहर रूम टेम्परेचर में, इट इज नॉट गोइंग टू मेल्ट ऑल्दो बोथ आर सॉलिड। क्यों? क्योंकि चीनी जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी अट्रैक्शन आर मोर देन आइसक्रीम पार्टिकल्स। तो जिसकी ज्यादा अट्रैक्शन है उसका क्या होगा, उसका जो है इंटर पार्टिकल स्पेस कम होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो उसकी वजह से इट टेक्स टाइम टू मेल्ट डाउन। ठीक है। सो इसके बाद जो आपने लिखना है, ऑल सॉलिड्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। और सेम चीज हैपन, सेम चीज होती है जब हमारा जो है लिक्विड गैस में जाता है, उसमें भी सेम चीज होती है, लेकिन वहां पर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, वहां पर होता है बॉइलिंग पॉइंट। देयर वी सेड वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, दैट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? इज इट क्लियर बेटा? दैट्स नाइस। सो इसको नोट कर लो, ठीक है। कैमरा इज स्टिल ऑन ऑन। तो अभी आपकी जो है मैथ्स की क्लास अब लगने वाली है, ठीक है। सो बाय एवरीवन, वी विल गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन।